Lack there of democracy. Lack there of democracy. Right from the spot of the rally, where all the action is happening. Shivashish, over to you. The rally is getting bigger and stronger, and we can see top BJP leaders have arrived as well. Yes, top BJP leadership is present here in West Bengal. Bengal BJP is called this rally. This is a massive rally in Kolkata happening today, and here I have Bharati Ghosh with me, the national spokesperson of Bharatiya Janata Party. I will like to go to Bharati. Bharati, everyone from the nation wants to know that why this rally is happening, because we have seen the last 1 year there are post-poll violence. So what is your take on it? Okay, just a minute. Okay. She is busy for arranging the rally. You all can see that this is a massive rally of 1 lakh people. As the claims are coming from organizers, there are 1 lakh people. They have taken place in this massive rally. You can see my video journalist Gaurav Pal is there, and Gaurav Pal is trying to let you know that this is the size of this rally. And here some of the recent incidents like Ashkali, like Namkhana, the Pingla murder, and all this Debra, Bolpur, the incidents which took place in last 1 month, and all the incidents are crime against women. And Bharati Ghosh is again with me. I would like to know that the cause of this rally, the post-poll violence. There is no democracy in Bengal. Every day, women, even girl child, are getting gang raped, and Trinamool Karyakartas are involved in the gang rape, either directly or in eliminating the evidences. There is no democracy. And today we are hitting the Rajpath, the streets of the capital city, to voice our protest against police atrocities, against the atrocities of the TMC government. Around 60 of the BJP Karyakartas, they have been attacked and they are brutally murdered. As per the allegations of Bhajpa, that 60 people, at least they have died in post-poll violence. Not 60, more than 200 Bharatiya Janata Party Karyakartas have been dead. And this state has saw bloody polls in the panchayats, in the Vidhan Sabha, in the Lok Sabha, and every election and by-election, the votes are rigged. So this is a call for democracy, fight for democracy, where women, even mothers, wives, sisters, they have hit the street to say that we want democracy restored in Bengal. You have taken part in different rallies. How many people, how much people are present today? What do you think? See, people, they try to come out in the streets, but they also know that tomorrow their doors will be knocked by the police and they will be implicated in false cases. Despite the fear, despite the apprehension, they have responded to the call of Bharatiya Janata Party, and today we see a huge wave of people on the streets, and the call for democracy is loud and clear. As you are live on Republic Bharat and Republic in TV also, I would like to ask you a few questions in Hindi also. पूरा भारत ये जानना चाहते हैं कि बंगाल में ये जो हादसा हुआ है पिछले 1 साल से, उस हादसा को आप कैसे देखते हैं? ये तो हमारा जो बंगाल में जो पब्लिक है, इनका अधिकार नहीं है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है, चलने का अधिकार नहीं है, कुछ कहने का अधिकार नहीं है, कुछ प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। ये गणतंत्र नहीं है। इसलिए आज गणतंत्र के लिए हमने रास्ते पे उतर आए हैं। हमने ये सरकार को एक न्योता देने के लिए, एक वार्निंग देने के लिए कि अगर ऐसा चलते रहे तो there will be civil revolution in Bengal. People will come out in the streets and people will call for change. जैसे कि भारती घोष बता रही थी, बीजेपी के मुखपात्र है वो, और वो कह रहे हैं नेशनल स्पोक्सपर्सन भारती घोष कि ऐसे अगर चलता रहेगा, अगर कोलकाता, अगर बंगाल में ऐसे ही चलता रहेगा तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए
वो लोग आज सड़कों पे उतर आए हैं कोलकाता पे। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, मेरा वीडियो जर्नलिस्ट गौरव पाल जो दिखा रहा है, लाखों के तौर पे कार्यकर्ता आज सड़कों पे उतर आए हैं कलकत्ते के सड़कों पे। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे युवा है, वो रास्ते में उतर आए हैं, वो जॉब मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो बंगाल में। क्योंकि जैसे कि क्लेम किया जा रहा है भाजपा के तरफ से 60 जन के करीब कार्यकर्ता उनके उनके हत्या किया गया है। और उसी आरोप के तहत हम देख रहे हैं यहाँ पे 60 जन से भी ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता के मौत हो चुके हैं पिछले 1 साल में। और उसी के प्रतिवाद करके यहाँ पे हम देख रहे हैं, वो यहाँ पे लाखों के तौर पे कार्यकर्ता आए हैं, महिलाएं हैं, युवा है, रास्ते में उतर आए हैं वो लोग। और जैसे कि वो लोग बता रहे हैं कि 1 साल हो गया है, ममता जी तीसरी बार सीएम बन चुके हैं और वहां पे सत्ते में तीसरी तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार आ चुके हैं 1 साल से ज्यादा। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी कब रिस्टोर होगा, ये प्रश्न उठा रहे हैं भाजपा के बंगाल के जो तमाम यहाँ के लीडरशिप है। सुकांत मजूमदार प्रेसिडेंट है, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी है, यहाँ पे दिलीप घोष है, यहाँ पे भारती घोष है। तो सब कह रहे हैं कि बंगाल का हालात, बंगाल में यहाँ पे लोकतंत्र की हालात बहुत ही संगीन है। और इसीलिए यहाँ पे लोकतंत्र को वापस लाने के लिए ये जो हम देख रहे हैं सड़कों पे, ये जो आम निकल के आए हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र को लौटाने के लिए आज सड़कों में आ गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता। और हमें माहौल बताइए अभी क्या है वहाँ पे। हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टर्नआउट है बीजेपी वर्कर्स का। शुभेंदु अधिकारी ने भी बात करी थी अभी, शुभेंदु अधिकारी का क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए, हम थोड़े ही पहले हम गए थे शुभेंदु अधिकारी के पास और यहाँ पे अभी मेरे पास है शंकुदेव पांडा, वन ऑफ दी लीडर स्टेट लीडरशिप। मैं पहले शंकुदा के पास जाना चाहूंगा। ये जो हम देख रहे हैं कि लाखों के तौर पे भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं, क्या बताएंगे? देखिए, बंगाल में अभी 1 साल पूरा हुआ है और ये साल कोई काम का साल नहीं था तृणमूल कांग्रेस के लिए। ये साल अभी तक हमारे 200 से ज्यादा कार्यकर्ता का देहांत हो गया। और मैं देहांत ना बोल के बोलूं कि मर्डर कर दिया टीएमसी वालों ने। और ये क्या किस तानाशाही का सरकार चला रहे हैं? यहाँ पे युवाओं का नौकरी नहीं है। यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, अभी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं पार्थो चटर्जी, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रहा है। उनको सीबीआई बुला रहे हैं, वो भाग रहे हैं। उनके लीडर अनुब्रत मंडल वो भाग रहे हैं। और अपने कार्यकर्ता का देहांत हो रहा है, उनको मारा गया है, उनको मर्डर किया जा रहा है। और कोई भी इंसाफ का बात अगर हम लोग यहाँ कहते हैं तो कोई भी इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलता है। शंकु जी, 1 साल हो गए, 1 साल हो गए हैं। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे, जिन लोगों की मौत हो चुका है, जिन लोगों की हत्या किया गया है, जैसे कि आरोप आ रहा है भाजपा के तौर से, लेकिन उन लोगों को किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। देखिए, यहाँ पे हर कोई केस के लिए ही हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, उसके लिए सीबीआई लेना पड़ रहा है। सीबीआई होने के बाद भी अगर देखिए ऑर्डर हुआ है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, जो इलेक्शन के बाद जो भी हिंसा हुआ है उसके ऊपर, इतने मर्डर हुआ है, रेप हुआ है। और बंगाल में देखिए जेनोसाइड हुआ है। आपने देखा है, बोक्टुई बोल के एक जगह है जहाँ पे एक बच्चा को मार के जला दिया गया है जिंदा, और पुलिस वहां तक नहीं पहुंचा। और चीफ मिनिस्टर जब पहुंचे तब उन्होंने बोला कि भाई अपने लोकल ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट है टीएमसी के, उन्होंने नहीं बोला, इसीलिए पुलिस नहीं गया। तो मुझे लगता है कि बंगाल में अभी राष्ट्रपति शासन की स्थिति पैदा हो चुका है और यहाँ पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम पूरा तहस नहस हो चुका है। तो इमीडिएटली अभी बंगाल का जो स्थिति है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। 356 लागू करने की बात हो रही है। बंगाल में जो परिस्थिति है, बंगला पे जो परिस्थिति है, यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के नेतृत्व, वो कह रहे हैं कि अभी 356 लागू करने की सही समय है राज्य पे। और वो अपने केंद्र के जो भी नेतृत्व है उनके साथ के हमारे जो केंद्रीय सरकार है उनके पास बता रहे हैं कि 356 लागू करना चाहिए। अभी कोलकाता पे, वेस्ट बंगाल पे ऐसा ही भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले बोल रहा था
कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि युवा यहाँ पे उतर आए हैं रास्ते पे, महिलाएं उतर आए हैं रास्ते पे, और जैसे कि देखा जा रहा है लाखों के तौर पे भाजपा के कार्यकर्ता कई जिला से, बांकुड़ा से आए हैं।